Hello students, myself Pawan Kumar Punia from Department of Electrical Engineering in Arya College of Engineering and Information Technology, Jaipur. Today in our subject Power System Planning, we will study our next topic, Transmission and Distribution Planning. As in previous topic and previous lectures, we have studied different planning tools, planning infrastructure, modeling reliability planning, etc., etc. Now our focus is on only transmission and distribution. As we know that if we have healthy generation, we have discussed this thing many times in previous lecture. If we have healthy generation planning, that we can estimate to a large extent that we have a healthy transmission planning or healthy transmission operation also. So we will see that the content of our today our transmission and distribution planning topic. First is objective of transmission planning, that why are we planning our transmission. Next one is network reconfiguration and evaluation techniques, system loads, points, indices, detailed distribution projection, etc., effect of transferring loads, etc., etc. We will study one by one. So first is objective of transmission planning. As we know that transmission is also a core part of our power system. If we have a healthy transmission means reliable transmission, that there is a minimum chances of fault. We can eliminate 100% possibility that we don't the fault do not occur in our system. But we know that many time in functioning of power system, some incontingencies get arises, some uncertainty get arises, we call them as a fault. So the main objective of transmission planning is to avoid different uncertainties that arises time to time. So first of all, we need to know the main if and buts of transmission planning structure, that how power system works. Next is peak demand matches. Peak demand is the maximum demand comes at certain time duration. Obviously the peak demand not occur for long duration also. So peak demand होता भी है कि अगर if you are taking the whole year duration, 5 year duration, 24 hour duration, उसके अकॉर्डिंग हम पीक लोड देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम लोड कब आया. और द मेन थिंग इज हाउ मच द पीक लोड इज डिफरेंस फ्रॉम द बेस लोड, उसमें कितना वेरिएशन है. अगर वेरिएशन बहुत ज़्यादा है तो हमारा क्या है, जो अनसर्टेनिटी कंडीशन भी और उसको मैनेज करना भी थोड़ा मुश्किल रहता है. टेक्निकल हमारे कुछ लिमिटेशंस रहती हैं, तो उसके लिए रिजर्व मार्जिन भी ज़्यादा रखना पड़ता है. और रिजर्व मार्जिन से क्या है, अगर वो बेस लोड से ज़्यादा डिफरेंस है तो हमारा एक्सेस पावर जो हमने इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है जो मैक्सिमम यूज़ करना पड़ता है, और हमारा जो बेस लोड में कम है तो हम पूरा एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता. तो हम एक जो एक एफिशिएंट नहीं बोल सकते हैं, हमारा पावर सिस्टम थोड़ा लॉस में रहेगा और उतना रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाएगा, क्योंकि कंज्यूमर तो उतना ही पे करेगा जितना उसने इलेक्ट्रिकल पावर यूज़ किया है. और पीक लोड के लिए बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए वो यूज़ कर रहा है, बाकी वो बेस लोड मैक्सिमम यूज़ कर रहा है. तो हमें ये चीज़ देखना पड़ता है. इस तरीके से हमारा जनरेशन को हमें डिज़ाइन करना पड़ता है. अलॉन्ग विद दैट वी हैव टू डिज़ाइन आवर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑल्सो. नेक्स्ट वन इज हाउ सिस्टम रिएक्ट ड्यूरिंग डिफरेंट फॉल्ट्स के साथ हमें किस टाइम उसको पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है. मेनली ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन को वो हमें देखना है डिफरेंट प्रोटेक्टिव स्कीम्स को स्टडी करके. नेक्स्ट वन इज स्टेट एस्टिमेशन, डिफरेंट स्टेट ऑफ पावर सिस्टम. जो हमारा पावर सिस्टम की डिफरेंट स्टेट है, इसमें हम क्या स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी की भी कंसर्न करते हैं. और दूसरा हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे डिफरेंट पावर जनरेशन है जो इंटरफेस हुआ है, कनेक्टिविटी है, जैसे डिफरेंट वोल्टेजेस हैं जो ट्रांसमिशन की, तो उनको आपस में इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, तो वो हमारा उसमें स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी को सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं. फिर क्योंकि एक स्टेज से दूसरे स्टेज में हमारा जो सिस्टम ट्रांसफ़र होता है, तो उसमें क्या है, खूब सारा लोड अगर वी हैव एडेड अ मैक्सिमम लोड एडेड, देन सडनली हम उसको काफ़ी बड़े लोड को रिमूव करते हैं. तो डिफरेंट इस पावर सिस्टम में होता रहता है. बट इफ़ यू हैव लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स, तब हमारे ये पॉसिबिलिटी कम रहती है कि फॉल्ट्स में इससे हमारा फ़र्क पड़ेगा. तो डिफरेंट टेक्निकल टर्म्स है जो हम देखते हैं. कंटीजेंसी एनालिसिस, कोई डिफरेंट अनसर्टेनिटी अराइज होता है तो उसको हम एनालाइज करें और उसको पहले प्रीवियसली हम फोरकास्ट करके उसको हम स्टडी करके उसके लिए हम प्रिपेयर रहें, हमारे पावर सिस्टम को उसके लिए हम प्रिपेयर रखें. गिव्स द आइडिया अबाउट द ग्रिड मैनेजमेंट, जो हमने काफ़ी बार डिस्कस कर चुका है ग्रिड मैनेजमेंट के लिए. नेक्स्ट वन इज ग्रिड मैनेजमेंट में बेसिकली क्या है, जो पावर शेयरिंग होता है. लोड फ्लो एनालिसिस एंड पावर फ्लो एनालिसिस, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि जो हमारा लोड फ्लो एनालिसिस उसके लिए जो डिफरेंट मेथड्स एंड टेक्नोलॉजी है,
टेक्निक्स है, सॉरी टेक्नोलॉजी नहीं, टेक्निक्स हैं, उसको हम पहले फॉर्मुलेट करके रखते हैं। पावर लॉसेज ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, एज वी नो दैट वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ लॉसेस, और ये हमारा टेम्परेचर्स जब राइज होता है तो लॉसेस भी इंक्रीज़ करते हैं, जो हमारा जो पावर डिमांड इंक्रीज़ करते हैं, अलॉन्ग विद दैट इंक्रीमेंट ऑफ द ट्रांसमिशन पावर, जो पावर लॉसेस भी इंक्रीज़ करता है, तो उसको कैसे मैनेज करना है और कैसे मिनिमाइज़ करना है। मॉडलिंग ऑफ जनरेटर एंड ट्रांसमिशन लाइन, जो डिफरेंट मॉडलिंग स्टडीज़ है, टेक्निक्स हमने की है, उसके साथ में इसको ट्रांसमिशन लाइन और जो जनरेटर को हेल्दी कंडीशन में मेंटेन रखना और ऑपरेशन में उसको रखना, आउटेज जो हमारे हैं उसको अवॉइड करना मैक्सिमम। नेक्स्ट वन इज नेटवर्क रिकॉन्फ़िगरेशन एंड इवैल्यूएशन टेक्निक। Network reconfiguration is the process of operating switches to change the circuit topology so that operating costs are reduced while satisfying the specific constraints। जो हमारे स्विचेस को ऑपरेट करना मीन्स कोई एक सर्किट है जो डिफरेंट सर्किट के साथ उसको इंटरकनेक्ट करना, या एक सर्किट से दूसरे सर्किट में पावर को शेयर करना, डिफरेंट चीज़ें होती हैं स्विचिंग में। हम देखते हैं एक लोड को दूसरी लाइन पे डाल सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, एक्सॉर्ट जो चीज़ें होती हैं। ये डिपेंड करता है कि हमारा नेटवर्क रिकॉन्फ़िगरेशन क्या है, वेदर इट इज़ रेडियल और नेटवर्क में क्या होगा, लूप सिस्टम होगा, रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। रेडियल हमारा इनएफिशिएंट सिस्टम है बहुत, पर चीप है। इसमें क्या है, एक एंड पे सोर्स लगा होता है, दूसरे एंड पे हमारे और कंज्यूमर ऐड होते हैं, पर लास्ट एंड कंज्यूमर पे वोल्टेज ड्रॉप पे मैक्सिमम प्रॉब्लम होती है और लॉसेस रहते हैं। ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। नेक्स्ट में लूप में क्या टू वे हमारा जो सोर्स होता है इसमें, और टू वे ट्रांसमिशन होता है। जो रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें मोर देन 2, 3, 4 सोर्सेस हो सकते हैं, बट उनकी जो रिलायबिलिटी लूप और रिंग की एज़ कम्पेयर टू रेडियल हाई होती है, पर वो उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। और मेनली हम जो रेडियल सिस्टम जो बहुत रूरल एरिया में कम लोड रहता है वहाँ पे यूज़ करते हैं, और जो लूप और रिंग को हम जहाँ पे हाई डेंस एरिया अर्बन एरिया में मेट्रो सिटीज़ में यूज़ करते हैं। इवैल्यूएशन टेक्निक, जो नेटवर्क रिकॉन्फ़िगरेशन है वो हमने देखा, उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हम इवैल्यूएशंस क्या देखें। इवैल्यूएशन हमारी लॉसेस की हो सकती है, पावर फ्लो की हो सकती है, जो हमारे सिस्टम वोल्टेज है उस चीज़ की हो सकती है, वो किस चीज़ की हम इवैल्यूएशन करना चाहते हैं। इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं कि लोड फ्लो स्टडीज़, फिर फॉल्ट एनालिसिस, शॉर्ट सर्किट स्टडीज़। जैसे शॉर्ट सर्किट की एग्जांपल लेते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट में जो हमारे जो द करंट विच कैन फ्लो एट फॉल्ट कंडीशन, हम उसका एनालिसिस करते हैं। स्टेबिलिटी स्टडी, हमारा स्टेबिलिटी डिस्टर्ब कैसे हो रही है। कंटीजेंसी एनालिसिस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अनसर्टेनिटी अराइजिंग एट एनी कंडीशन, वो प्रोबेबिलिटी क्या है, किस टाइप की अनसर्टेनिटी आ सकती है, उस चीज़ की हम स्टडी करते हैं इवैल्यूएशन टेक्निक में। सिस्टम लोड एंड पावर इंडाइसिस, एक सिंपल जो हमारे इंडाइसिस हमने बनाया हुआ है। इंडाइसिस स्टैंड फॉर द जो एक स्केल है कि हमारा पावर सिस्टम कितना रिलायबल है, कितना एफिशिएंट है। तो वो है हमारे पास मेनली 4 टाइप की। SAIFI, सिस्टम एवरेज इंटरप्शन फ्रिक्वेंसी, दैट इज रिलेटेड टू द फ्रिक्वेंसी। SAIDI, सिस्टम एवरेज इंटरप्शन ड्यूरिंग इंडेक्स, जो कोई फॉल्ट कंडीशन आता है हमारा सिस्टम में, जो फॉल्ट रहता है, कोई डिस्टर्ब होती है, कोई लाइन डिस्टर्ब होती है। नेक्स्ट वन इज CAIDI, जो हमारा कस्टमर एवरेज इंटरप्शन ड्यूरिंग इंडेक्स, जो हमारा जो कस्टमर एवरेज इंटरप्शन, जो पावर हम उसको नहीं सप्लाई कर पा रहे हैं, जो ये आउटेज रेट के साथ रिलेटेड करता है हमारा। नेक्स्ट वन इज CAIFI, जो कस्टमर एवरेज इंटरप्शन फ्रिक्वेंसी इंडेक्स है, जो हमारे जो इंडाइसिस में जो कस्टमर हमारे जो सर्विसिबिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही फ्रिक्वेंसी रिलेटेड कंटीजेंसी के अकॉर्डिंग। तो ये सब अलग अलग 4 इंडाइसिस है जिसमें हम अपने पावर सिस्टम को स्केल करते हैं, कितना हमारा पावर सिस्टम रिलायबल एंड एफिशिएंट है। नेक्स्ट वन इज लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्शन। जो लेटरल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्शन है उसके हम ये देखेंगे, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि द मेन डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन इज दैट ट्रांसमिशन पे डायरेक्ट लोड कनेक्ट नहीं होता है, या होगा तो हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन पे होगा, बट इन और वहाँ पे लेवल जो वोल्टेज लेवल है बहुत हाई रहता है। बट इन डिस्ट्रीब्यूशन हम क्या देखते हैं, वोल्टेज लेवल वो रहता है, और बट हमारा जो लोड हमारा काफ़ी इसमें कनेक्टेड रहता है। और हमारा ये क्या रहता है, वोल्टेज लेवल कम होने से हम इसको मैनेज करना हमारा सिंपल रहता है। बट प्रॉब्लम क्या है, ये इसका जो इंटरकनेक्शन सर्किट है बहुत हमारा कॉम्प्लेक्स होता है। तो ये जो हमारे जो प्रोजेक्शंस है कि जैसे हमारे नए कंज्यूमर ऐड होंगे, विच टाइप ऑफ कंज्यूमर वी आर हैविंग, और जो हमारे प्रेजेंट कंज्यूमर है वो एक्सपेंडिशन मतलब वो लोड डिमांड कर रहे हैं। तो इंटरकनेक्शन जो हमारा सिस्टम है उसको हमें जो प्रोजेक्ट करना है, ठीक है। और ओनली द पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन,
वहाँ पे हम देखते हैं। ये सब हमारा जो स्टडी रहता है उसमें हम इसको देखते हैं। मेन चीज़ इसमें हम जो कंसंट्रेट कर रहे हैं कि जो हमारे डिस्ट्रीब्यूशन है वहाँ पे हम वहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इंटरकनेक्शन से क्या हो रहा है, जो हमें पावर सिस्टम की रिलायबिलिटी मेंटेन कर, इफ़ यू हैव हैविंग प्रॉब्लम इन एग्जांपल लेते हैं, कोई फीडर है सिंपल फीडर में है, देन बट वी हैव द ऑप्शन ऑफ अल्टरनेटिंग फीडर, अल्टरनेटिंग सोर्स दैट इज कनेक्टेड टू दैट लोड, उससे हम उसका रिलायबिलिटी मेंटेन कर सकते हैं। Basically thing is that we have to make our power system reliability high and serviceability high for customer at cheap price in distribution part only। मैक्सिमम हमारे जो लोड कंज्यूमर्स हैं, जो हमारा लोड कनेक्टेड है, जो हमारे कंज्यूमर्स हैं, वो डिस्ट्रीब्यूशन में ही हमारे साथ होते हैं। ट्रांसमिशन क्या करता है, जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन को आपस में इंटरलिंक कर रहा है। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ डिस्कनेक्ट्स। वी सी दैट बोथ द वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी वैल्यूज इंक्रीजेज। दिस वेरिएशन डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ इलेक्ट्रिकल नेटवर्क and the size of electrical load that was suddenly rejected. If all the control are working properly, the variation will be very small and the system will return to normal in less than a second। जो हमारा अनसर्टेनिटी कंडीशंस हुआ, जो कंटिजेंसीज एनालिसिस हुआ, जो हमने जो हमारा जो ट्रांसमिशन और जनरेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन जो पावर सिस्टम प्लानिंग किया, उस चीज़ में हम क्या देख सकते हैं कि वी हैव वांट टू लिमिट दैट इन कंटिजेंसी ऑकरिंग कंडीशंस, उसको हमको लिमिट करना है मैक्सिमम में। वो हमारा कब देख रहे हैं कि ये कंटिजेंसीज केस से क्या हो रहा है, वोल्टेज और करंट या फ्रिक्वेंसी इनमें वेरिएशन आता है, और ये वेरिएशन इस जो अपने लिमिट है जो उससे बाहर होता है, तो हम इसको कंटिजेंसीज बोलते हैं, कंटिजेंसी कंडीशन बोलते हैं या फॉल्ट कंडीशन बोलते हैं। बट इफ़ यू हैव टेक्नोलॉजी और वी हैव ए प्रोटेक्टिव स्कीम दैट वी कैन लिमिट दिस वेरिएशन, और वी कैन स्विच दिस इनस्टेबिलिटी टू स्टेबिलिटी मोड और स्टेबिलिटी स्टेट विद इन वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम, तो हम इस चीज़ को मैनेज कर सकते हैं बहुत स्मॉल टाइम के लिए, और पावर सिस्टम को हेल्दी रख सकते हैं। मेन डिस्कनेक्ट्स क्या है, अगर हमारा लोड है ऑन लोड सिस्टम से नो लोड सिस्टम की तरफ जो हमारा मूव करता है कंडीशन, काफ़ी बड़ा लोड हट जाता है, कुछ भी कंडीशंस हो सकती हैं, इसमें हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं और इसको मेंटेन रखते हैं अपने हेल्दी कंडीशंस के अंदर, वोल्टेज को, फ्रिक्वेंसी को और करंट को। नेक्स्ट वन इज इफेक्ट ऑफ प्रोटेक्शन फेलियर। प्रोटेक्शन फेलियर स्टैंड फॉर द, हमने जैसे रिलेज है, रिलेज का मान फंक्शनिंग हो गया, सर्किट ब्रेकर है वो ऑपरेट नहीं हो पाया, या फिर वो उसका रेंज से अलग जो हमारा सर्किट ब्रेकर आया तो उसमें हमारा कोई प्रॉब्लम है, आइसोलेटेड में कोई प्रॉब्लम, XYZ कुछ भी हमारा जो प्रोटेक्टिव स्कीम्स है हमने जो इम्प्लीमेंट किया है, इम्पेडेंसेस मिसमैच हुआ, कुछ भी हुआ, XYZ जो रिलेज को करना चाहिए, डिस्टेंस रिले होती है, डायरेक्शन रिले, डिफरेंट रिलेज, हम प्रोटेक्शन स्कीम में हम इसको पावर सिस्टम फॉल्ट्स में स्टडी करते हैं। उसमें जो प्रोटेक्शन फेलियर होता है उसके लिए हम उसके लिए जो एक जो फॉल्ट क्रिएट हुआ उसको हम जो कैसे सिस्टम को जो ब्लैकआउट की तरफ लेके आ रहा है उसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी हैव टू स्टडी द ब्लैकआउट कंडीशन और दैट फेलियर कंडीशन to limit this thing, or we have to analyze the conditions which can create protection failure. Here we see that the failure of protection system is to localized fault can cause कैटास्ट्रॉफिक फेलियर ऑफ ए सिस्टम और ब्लैकआउट। कैटास्ट्रॉफिक फेलियर मीन्स फॉर फॉल्ट एक बहुत बड़े लार्ज स्केल में आता है पावर सिस्टम में, और पूरे पावर सिस्टम को एक ब्लैकआउट की तरफ लेके जा सकता है। मेन रीज़न इसमें क्या है, कैसे कंडीशन अराइज होती है कि आगे से आगे जो हमारा सिस्टम हेल्दी को अनहेल्दी में कन्वर्ट कर देती है। Next is effect of transferring load. As we know that we have different loads at different load centers, जो ट्रांसमिशन के हैं अलग अलग लोड्स होते हैं, फिर जो हम अलग अलग फीडर्स होते हैं, उनमें जो लोड हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, या फिर लोड को हम हटा रहे हैं, डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, उसमें क्या इफेक्ट्स होता है। जो हमारा फीडर वोल्टेज है, जो फीडर करंट है, और जो रिजर्व कैपेसिटी, इनमें उसका वेरिएशंस आता है। तो फीडर वोल्टेज फीडर करंट में तो वेरिएशन आता है, जिसके लिए हम प्रोटेक्शन स्कीम लगाते हैं उसको विद इन लिमिट रखने के लिए। रिजर्व पावर में क्या रहता है, अगर हमारा डे टू डे जो हमारा पावर डिमांड बाय द वे कोई टेक्निकल ट्रेंड आया उससे कम हो रहा है, तो रिजर्व हमारा जो है पावर जो हम रखते हैं पीक के लिए, ऑब्वियसली वो पीक की तरफ कम जाएगा, तो हमारा हम एक्सेस पावर के लिए हमने इंस्टॉल किया, कोई इशू नहीं है, बट हमारा लॉसेस होगा कि हमने किया हमारा पावर सेल नहीं हो पा रहा। बट अगर ये वाइस वर्सा होता है कि हमारा जो रिजर्व कैपेसिटी से ज़्यादा डिमांड आ रहा है काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए, तो हमें लोड मैनेज करना पड़ेगा, पर यहाँ पे सर्विसेबिलिटी और हमारा पावर सिस्टम का रिलायबिलिटी दोनों डिस्टर्ब हो जाता है। फिर जो हमारा रिजर्व पावर हम यूज़ कब करते हैं, ओनली पीक टाइम के लिए। एज वी नो दैट फॉर पीक टाइम के लिए हम रिजर्व पावर यूज़ करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें वो देखना पड़ता है। और वी हैव स्टडीड दैट अप्रॉक्सीमेट 12 to 15%
इंक्रीमेंट हमारा रिजर्व पावर में विद इन 3 ईयर आता है। और हमारे जो बहुत ज़्यादा रिजर्व पावर हम नहीं रख सकते, क्योंकि हमें इंस्टॉल्ड कैपेसिटी ज़्यादा लगाना पड़ेगा ज़्यादा रिजर्व पावर रखने के लिए। फॉर ए रिलायबल इकोनॉमिक पावर सिस्टम ऑपरेशन वी टेक रिजर्व कैपेसिटी ऑफ 10% ऑफ टोटल पावर सिस्टम जनरेशन का 10% हम रिजर्व कैपेसिटी मेंटेन करते हैं। लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन रिलायबिलिटी इंडाइसिस, ये इंडाइसिस हमारा मार्जिन है जो हम एक जो मॉनिटरिंग इंडाइसिस है कि हमारा एट द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कितना रिलायबिलिटी मेंटेन हुआ। ये एक्स चीज़ों पे डिपेंड करता है कि इसमें कितना जो आउटेज रेट आया, कितना हमारा जो हमने इंटरप्शंस देखा था, फ्रीक्वेंसी है, वोल्टेज है, और उससे हम इसमें इसको कैलकुलेट करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा।